Today we will understand this statement use effect is not equal to component amount. So few days back मैंने Instagram और YouTube में एक पोल रन किया था कि क्या ये दोनों सेम है. तो in YouTube approximate 76% of people think believes कि भाई ये statement correct है. Use effect is same as component amount. And in Instagram 57% of people think कि yes this statement is right, but in reality this statement is wrong. आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यूज इफेक्ट इज नॉट इक्वल टू कॉम्पोनेंट अमाउंट. और जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी है. ये जो एग्जैक्टली लाइन मैंने लिखी है दिस माइट बी कंफ्यूजिंग. तो मैं तुम्हें एक्चुअल रीज़न बताता हूँ कि हम क्या समझने की कोशिश आज करेंगे. To understand when the callback that we pass in use effect gets invoked. So basically see, this is my React component और यहाँ पे एक use effect है. तो आज जो 30-40 मिनट हम स्पेंड करेंगे वो ये समझने में कि भाई ये जो कॉल बैक हम पास करते हैं ये कॉल कब होता है. ओके कब होने से क्या मतलब है. वेल बिफोर पेंट और आफ्टर पेंट. And what is paint? And why it is important to know the timing of callback. भाई मुझे ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है. ओके कि ये कॉल बैक कब कॉल होता है. जस्ट पास द कॉल बैक एंड डू योर जॉब. तो बिफोर वी सी एनीथिंग मैं तुम्हें प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि भाई ये क्यों ज़रूरी है. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. आई हैव अ कॉम्पोनेंट, आई हैव अ स्टेट वेरिएबल और JSX में आई एम जस्ट rendering this state variable, and in use effect I am just updating this state variable again. अब ये रिक्वायरमेंट वॉट एवर रीज़न की वजह से आ सकती है. माइट भी तुम प्रॉप चेंज पे मैसेज को अपडेट करना चाहो, नेटवर्क कॉल पे, वॉट एवर. फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट कि भाई जब ये कॉम्पोनेंट स्क्रीन पे दिखे आई वॉन्ट टू सी दिस डेटा कमिंग फ्रॉम API सर्विस. सो दैट्स वाई इनिशियल में मैंने एक डिफ़ॉल्ट मैसेज डाला और यूज इफेक्ट में फाइनल मैसेज. तो अभी अगर इस कोड को मैं UI पे चलाऊं तो दिस इज़ द UI. और अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो थिंग्स विल बी वर्किंग फाइन. बट इसमें एक इशू है. इशू ये है कि अगर यूज़र फर्स्ट टाइम ओके मेरी एप्लीकेशन को लोड करता है अपने सिस्टम में, अपने ब्राउज़र में, तो ही विल सी अ फ्लिकरिंग ऑफ this default text for a split second. Okay, let me do a like hard reload. Notice the flickering. Let me slow down this for you. तो मैं यहाँ पे simply let I equal to 0 एक while loop चला देता हूँ. Long while loop I less than 1 0 0 0 0 and let's add a console.log to add delay more I and let's do I plus plus and let me replicate this so that I get more time experiencing the flickering. Now let's hard reload. Well, it's taking some time. Let me do one thing. Let me remove the console from here and let's remove 1 0. Let's do a refresh. Notice the flickering. This is default message and after some time you are getting data coming from API service. Let me do a refresh again. See, so this flickering is the problem. अब might be जब तुम React पे काम शुरू कर रहे हो तुम्हें ये नॉर्मल लगे, but this is not normal. We can push this, we can push our boundaries and we can understand कि भाई ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है. बिकॉज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम क्लास कॉम्पोनेंट्स, ओके, अगर मैं यहाँ पर एक क्लास कॉम्पोनेंट बनाऊँ, क्लास कॉम्पोनेंट हम कैसे बनाएंगे. वेल इट्स वेरी इजी. लेट्स क्रिएट अ क्लास माई कॉम्पोनेंट एंड लेट्स extends it from react.component. The next thing we will do is we will create a state. Let's initialize the state with message. Default value will be this is default message. And what is the equivalent of use effect जो हमें सब लोगों ने बताया है. Well, component did mount, and inside component did mount I will do exactly that I am doing here. Let's paste it and let's call this dot set state this time and let's pass message this data
इज फ्रॉम API सर्विस। ओके, सो हमने स्टेट अपडेट कर दी इन component did mount. Let's implement our render function and let's return the same JSX h1 this dot state dot message, and let's use this component now. Export default. Well, no, I don't want to export it. I will export default my component. Okay, let's do a refresh. Now you will notice you are not getting anything. Well, I think I missed something. Cannot access my component before initialization. Well, that's the problem with const. React is not defined. Well, yeah, I have to import it. See, you are getting a white screen, but finally you just get the final message. There is no flickering. So अब जो नेक्स्ट 30-40 मिनट्स है हम वो ये समझने में बिताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कंपोनेंट डिड माउंट में ये चीज़ सही चल रही है और यूज इफेक्ट में क्यों ये चीज़ सही नहीं चल रही है। ओके, तो लेट्स सी। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अबाउट दिस टॉपिक, कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ओके, तो सी, क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिएक्ट 16.5 से पहले क्लास कंपोनेंट्स भी थे, फंक्शनल कंपोनेंट्स भी थे। द डिफरेंस वाज कि भाई जो क्लास कंपोनेंट्स थे ना, बस उसी में तुम स्टेट मैनेज कर सकते थे। जो फंक्शनल कंपोनेंट हुआ करते थे उनमें कोई स्टेट मैनेजमेंट या हुक्स ऐसा कुछ भी नहीं था। यू कैन जस्ट पास प्रॉप्स। ओके, तुम्हारे जो फंक्शनल कंपोनेंट होते थे वो बस लीफ कंपोनेंट होते थे, जिन्हें तुम अपने एप्लीकेशन की हायरार्की में सबसे नीचे यूज़ करते थे। बस प्रॉप पास कर दो और बेस्ड ऑन दैट प्रॉप उनका काम था JSX रिटर्न करना, दैट्स इट। अब ऐसा क्या हुआ भाई कि रिएक्ट वालों ने क्लास कंपोनेंट को डेप्रिकेट कर दिया और फंक्शनल कंपोनेंट को ज़्यादा पुश करने लगे। लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस थे। ओके, तो लेट मी फर्स्ट अगेन शो यू द डिफरेंस। क्लास कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट था, फंक्शनल कंपोनेंट में कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं था। फंक्शनल कंपोनेंट वाज डम कंपोनेंट एंड प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट ओनली यूज्ड टू शो डेटा, नो ब्रेन। तो चैलेंजेस हम देखते हैं। ओके, कि क्लास कंपोनेंट में क्या चैलेंजेस थे। तो JS डेवलपर्स हैव टू लर्न OOP, क्लास कॉन्सेप्ट्स डज नॉट अलाइन विद JS मैथोडोलॉजी। देखो, जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं ना, उनका जो माइंडसेट है वो फंक्शंस को लेके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जावास्क्रिप्ट में वैसे भी क्लासेस पहले नहीं थी, तो जितने भी प्रीवियस डेवलपर्स थे उनको क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस, इन सब चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ी, वो चीज़ें सीखनी पड़ी। और अगर कोई आना चाहता है तो उसको भी क्लासेस सीखना पड़ेगा। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, दिस सुपर डायलेमा। वेल, अगर तुम क्लास कंपोनेंट में पहले कभी काम करते थे, यू माइट रिमेंबर कि भाई अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आई हैव टू यूज़ दिस, तो भाई मुझे यहाँ पे सुपर कॉल करना पड़ता था। अब ये समझना डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे सुपर क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। एंड देन यू हैव टू डू वन मोर एडिशनल स्टेप, यू हैव टू पास डाउन ऑल द प्रॉप्स दैट यू रिसीव इन कंस्ट्रक्टर टू दिस सुपर। तो ये एक एडिशनल स्टेप था डेवलपर्स के लिए टू लर्न कि ऐसा क्यों करते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल मेथड्स, डेवलपर्स एक्सप्लॉइटेड लाइफ साइकिल मेथड्स। डेवलपर्स ने लाइफ साइकिल मेथड्स को कुछ इस तरह से एक्सप्लॉइट किया कि रिएक्ट वालों को कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स डेप्रिकेट करने पड़े और कुछ का सिग्नेचर ही बदलना पड़ा। फर्स्ट लेट मी शो यू द डायग्राम और फिर मैं बताऊंगा कि क्या एक्सप्लॉइट किया लोगों ने। दिस इज अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। 4 फेजेस में डिवाइड है: माउंटिंग, अपडेट, अनमाउंटिंग एंड एरर। जो मेथड्स का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है,
ये जो स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप लाइफ साइकिल मेथड है, ये बाद में ऐड हुआ। रिएक्ट टीम ने एक लाइफ साइकिल मेथड को डेप्रिकेट किया जो था कंपोनेंट विल माउंट एंड कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। अब लोगों ने एपीआई कॉल वगैरह लगाना शुरू कर दिया था उन मेथड्स में जिनके लिए वो नहीं थे। तो रिएक्ट टीम ने जानबूझ के ये मेथड निकाला, इसको स्टैटिक बना दिया कि भाई यहाँ पे दिस नहीं मिलेगा तुमको, यू कैन ओनली डू स्पेसिफिक वर्क जो कि प्लान्ड है कि तुम्हें इस फंक्शन में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम तुमको समझना पड़ता था। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप के बाद शुड कंपोनेंट अपडेट इफ यू आर इन अपडेट फेज, देन रेंडर, उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसके अंदर यूआई पे जितने भी एलिमेंट्स दिखने वाले हैं उनकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो जो प्रीवियसली थे। ओके, सो फॉर एग्जांपल तुमने कोई अपडेट ट्रिगर किया और अपडेट के बाद यू वांट टू स्क्रॉल टू अ लाइक प्रीवियस पोजीशन, तो वो सारी कैलकुलेशन तुम इस फंक्शन के अंदर करते थे और रिजल्ट को रिटर्न करते थे जो तुम्हें मिलता था कंपोनेंट डिड अपडेट में। अनमाउंटिंग के टाइम पे कंपोनेंट विल अनमाउंट, एंड इफ यू गेट एरर्स देन दीज टू मेथड्स वर गेटिंग यूज्ड। तो भाई ये जो लाइफ साइकिल का पूरा फ्लो था, इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। डेवलपर्स गलत काम कर देते थे उन लाइफ साइकिल मेथड्स में जिनमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता था ओके कि कैसे उन कंपोनेंट्स उन मेथड्स को यूज़ करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रिएक्ट टीम ने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की सुपर पावर ऐड की और रिएक्ट 16.8 में हमें मिले रिएक्ट हुक्स और यूज स्टेट यूज इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो उस टाइम पे जब मैंने सीखा था तो जहाँ से भी मैंने सीखा सब ने एक रॉन्ग माइंडसेट मेरे माइंड में डाला। हर कोई यही बोलता था कि भाई कंपोनेंट डिड माउंट इज सेम एज यूज इफेक्ट विथ एम्पटी डिपेंडेंसी एरे। और लिटरली 2-3 साल तक मैंने इसी अंडरस्टैंडिंग से अपना काम डिलीवर किया, बिकॉज चीज़ें सही चल रही थी, जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल रहा था। अनटिल आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इश्यूज। जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो हुई, लॉजिक बढ़ा, आई स्टार्टेड गेटिंग इश्यूज। और कैसे इश्यूज? वेल, मोस्ट ऑफ देम वाज रिलेटेड टू फ्लिकरिंग। जब कंपोनेंट लोड पे मैं कोई एपीआई कॉल लगाता था, अननेसेसरी एम्प्टी स्टेट दिखती थी। कई बार टेक्स्ट अपडेट होता था थोड़ी देर के बाद। देन आई स्पेंड सम टाइम एक्सप्लोरिंग कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्लास कंपोनेंट में तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एनकाउंटर्ड दिस इशू। और फिर मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। सो दिस शुड बी द राइट माइंडसेट इन क्लास कंपोनेंट्स, learn life cycle methods. When you come to functional components, there is no life cycle methods. It's all about synchronization. When you want to synchronize your state, and with what change you want to synchronize your state or UI. So when you work with functional components, it's all about synchronization. There is no concept of life cycle methods. तो आई विल टेक अनदर सेशन ऑन दिस थिंग कि भाई ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है एंड हाउ लाइफ साइकिल मेथड्स वर्क इन क्लास component, but that's not for today. Let's see this thing. Why use effect is not same as component in mount? तो प्रॉब्लम मैंने तुमको दिखाई दी है, दैट फ्लिकरिंग प्रॉब्लम। एक बार और तुमको मैं दिखा देता हूँ। इफ यू आर इन फंक्शनल component and okay, let me write use effect here. Use effect, let's pass a callback function and an empty array and let's update a state. Let's suppose कि state variable है, बना ही लेते हैं बिकॉज हम प्रॉब्लम को फिर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। यूज स्टेट, ओके। सो सी, डिफॉल्ट मैसेज इज डी इफ आई यूज दिस स्टेट इन माई JSX। तो जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे शो होगा, इट विल बी डिस्प्लेड विथ दिस डी, और फिर उसके बाद ASD स्क्रीन पे आएगा फॉर अ स्प्लिट सेकेंड।
you will notice D. Based on the speed of your computer, speed of your internet, that split second duration matters. Okay, तो नाउ लेट्स सी भाई कि ऐसा होता क्यों है, क्या डिफरेंस है. तो टाइमिंग. ओके, द रीजन is timing. Component did mount runs before paint synchronously. ओके, जो कोड भी तुम component did mount में लिखते हो वो before paint होता है. Whereas callback passed in use effect runs after paint. अब इन दोनों लाइन का मतलब तुम तब समझोगे जब तुम्हें पता होगा कि ये पेंट होता क्या है और ये कब होता है. ओके, ट्रस्ट मी, अगर तुमको नहीं पता ये दोनों चीज़ें कि पेंट होता क्या है और कब होता है, तो ये दोनों लाइनें तुम नहीं समझोगे. तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ पेंट. ओके, तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू हियर कि भाई पेंट होता क्या है. वेल, इट्स अ प्रोसेस. कैसी प्रोसेस? वेल, you pass on the calculated styles and layouts of UI elements to the browser, and based on the right time, browser will use this information to update the UI screen, the browser screen, the browser UI, or the page you are seeing. तो भाई पेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैलकुलेट द न्यू स्टाइल्स, न्यू लेआउट, न्यू पोजीशन, न्यू एनिमेशन. यू पास दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर्स एंड ब्राउज़र विल डिसाइड कि वो राइट टाइम क्या है उन चेंजेस को अप्लाई करने का, और फिर ब्राउज़र वो चेंज यूआई पे अप्लाई करते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पेंटिंग. Using the information to update the screen. This is paint. अब ये होता कब है? This is very interesting. Let's see. So let me remove all the code. I don't like these class components. So let's remove these. And I want a button. Yeah, let's create a button. Click me, please. And let's call a function. On click, handle click. Let's implement it. करना क्या है भाई इसमें? वेल, आई वॉन्ट टू अपडेट द इनर HTML ऑफ दिस h1 टैग. तो लेट्स डू द रिएक्ट वे. लेट्स क्रिएट अ बाई रेफ const h1 ref use ref and let's assign it here ref. ओके, और हैंडल क्लिक में क्या करना है भाई? मुझे इनर HTML चेंज करना है. h1 ref dot current dot inner HTML equal to changed from React. That's it. And let's change the color also. h1 ref dot current dot style dot color equal to red. Okay, you can change the position and whatever you want to do. Let's save this and let's export this component first. And let's go in the browser, do a refresh. Well, there is an error. State is not defined. कहाँ use कर लिया मैंने? Okay, here. Let's remove this. Okay, click me please, and I got a new text. तो अब समझते हैं भाई इसमें पेंट कब हो रहा है, बिफोर पेंट क्या है, आफ्टर पेंट क्या है. तो until your function call ends, browser cannot do the paint. तो जब तक हैंडल क्लिक का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, ब्राउजर्स कैन नॉट पेंट. तो इस हैंडल क्लिक में तुम जो भी कोड लिखो दैट इज बिफोर पेंट. console.log, दिस इज बिफोर पेंट. ब्राउजर्स यूआई को तब अपडेट करेंगे जब कॉल स्टैक खाली है, जब तुम्हारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है. तो इफ आई रन दिस, क्लिक ऑन दिस, क्लिक मी प्लीज. वेल, आई एम running my code before paint, and here comes component did mount. जो component did mount तुम implement करते हो वो कुछ इसी तरह से कॉल होता है. React सिंपली चेंजेस को कलेक्ट करता है कि भाई वर्चुअल डॉम कंपैरिजन के बाद क्या क्या चेंजेस करने हैं,
उनको डॉम पे अप्लाई भी कर देता है कुछ इस तरह से. आफ्टर दैट इट रन्स component did mount. तो अगर तुम्हारा component did mount टाइम लेगा तो तुम्हारा UI भी अपडेट होने में टाइम लेगा बिकॉज इट रन्स सिंक्रोनसली. दिस इज हाउ component did mount runs. Okay, before paint. Now, what if I want to run something after paint? What is the process? Well, it's very easy. Some of you might also knowing that there are three solutions to this problem. Let me add a multi-line comment here first. Okay, so the first way जो तुम सबको पता होगा, set timeout. I can run something after paint by using set timeout. Second, request ideal callback. रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक का यूज करके हम एक कॉलबैक स्केड्यूल कर सकते हैं. ब्राउजर उसको तब रन करता है जब कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं होता, जब ब्राउजर आइडियल होता है. थर्ड इज यूजिंग मैसेज चैनल. अब ये मैसेज चैनल मैंने कभी यूज नहीं किया तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट आई जस्ट नो कि ये 3 तरीके होते हैं. ठीक है, अब रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक यूज कर लेते हैं. दिस इज माई फेवरेट. और इसके अंदर पास करना है एक फंक्शन, और यहां पर तुम जो भी कोड रन करोगे दैट रन्स आफ्टर पेंट. Okay, so let's do a refresh. Let's click on this button. Before paint and after paint. So you are getting that flickering because your use effect is wrapped in request ideal callback. All use effect callbacks. तो अगर तुम्हारा यूज इफेक्ट टाइम लेगा भी तो UI तुम्हारा टाइम से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉल बैक तुम पास करते हो UI अपडेट होने के बाद कॉल होता है. ओके, सो दिस इज द रीजन दैट यू शुड नो कि वो कॉल बैक कब कॉल होता है, बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस दैट फ्लिकरिंग टू. और स्टार्टिंग में तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था भाई, मुझे लगा ऐसे ही चलता है. ओके, बट बाद में आई रियलाइज कि भाई ये तो बग है. तो डोंट यूज इफेक्ट विथ एम्पटी डिपेंडेंसी एरे फॉर दीज पर्पसेस. जब तुम्हें इनिशियल लोड पे UI अपडेट करना है, वेल डोंट डू दैट इन यूज इफेक्ट. यूज लेआउट इज द सॉल्यूशन. वेल, मैंने तुमको प्रॉब्लम तो बता दी, बट उसका सॉल्यूशन है यूज लेआउट इफेक्ट. तो जो कंपोनेंट डिड माउंट है उसका अगर कोई इक्विवेलेंट है इन फंक्शनल कंपोनेंट तो दैट इज यूज लेआउट इफेक्ट. अब यूज लेआउट इफेक्ट कब रन होता है? वेल, बिफोर पेंट. तो यहां पे सिंपली ऑल कॉलबैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट. तो अब अगर तुम्हारा यूज लेआउट कॉलबैक इफेक्ट टाइम लेगा तो UI अपडेट होने में टाइम लेगा. क्यों? क्योंकि कॉलबैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट कॉल्ड बिफोर पेंट सिंक्रोनसली. ओके, तो अभी अगर तुमको मैं एग्जाम्पल बताऊं फिक्स करके सब कुछ, तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स रिमूव everything. I just need a state variable and use effect, and we have to add a delay. So let's create a variable I equal to 0 while I less than 1000 and I plus plus. I want to replicate this few times, and let's do set state. This is from use effect. So things are ready. Let's simply render this in H1 state. See? Okay, so we have the flickering. Why we have the flickering? Well, yeah. Why? Because we have use effect. Use effect runs after paint. Let's change it to use layout effect. Well, you will not see a flickering because use layout effect runs before the paint. So this is the solution. Don't use effect for starting animation. Use layout effect. Don't use effect for fetching the data. अब इसके लिए अगेन मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यू कैन चेक दैट आउट. एंड व्हेन यू कैन यूज इफेक्ट with empty dependency array? Well, for tracking events, for preloading, prefetching of resources, for making API request
दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अर्जेंटली, जो तुम्हें थोड़ी देर बाद चाहिए। अब इफ़ यू से कि भाई मैंने मिस कर दिया यहाँ पे एडिंग इवेंट लिसनर, वेल तो यूज इफेक्ट इज नॉट द राइट प्लेस टू एड event listener. It used to be before React 18. After React 18, we have use sync external store hook that is recommended when you want to subscribe from data जो किसी दूसरे सिस्टम से आ रहा है. तो if you want to add event listeners, well, you don't have to use effect, use sync external store hook. Okay, so this is all about this statement, use effect is not equal to component in mount. And why we have to have understanding about this? Well, because of the flickering.